Good morning, guys. Today we will discuss how production possibility curve helps the central problem in different economy. First, what to produce. We have already discussed about the central problem of an economy. There are three central problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Now we will discuss one by one how we can solve these problem in different economy. First, what to produce. Please show the figure number 7. In this diagram, if we produce only wheat, single commodity only wheat, then we can produce 6 ton of wheat, which can be shown at point D, because we use all the resources only in our single commodity. In other hand, if all resources are used in the production of cloth, then we can produce 12 bales of cloth. It can be shown at point A. Stress between A and D of the production possibility curve show different combination of wheat and cloth that can be produced with the given resources. इसका मतलब यह है कि यदि हमने सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे एक ही कमोडिटी को प्रोड्यूस करने पे लगाए गेहूं पर, तो हमें 6 टन मिलेगा प्रोडक्शन. अगर हमने सारे के सारे रिसोर्सेज क्लॉथ के प्रोडक्शन पे लगाए तो हमें 12 बेल्स क्लॉथ मिलेगी, जो कि ए पॉइंट से शो होता है. इसके अलावा यदि हम चाहें तो ए और डी के बीच में अलग अलग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसको कि आप बी और सी पॉइंट से भी आप देख सकते हैं. यदि बी पॉइंट पर आप देखें तो 2 टन व्हीट होगा और 10 बेल्स क्लॉथ की होगी. इसी तरह सी पॉइंट को यदि आप देखें तो you can see 4 ton of wheat and 6 bale of cloth. At both these points, resources are fully as well as efficiently used. But if you one commodity increase, then the production of other commodity has to be decreased, because full utilization of resources, hence the problem of allocation of resources across their different uses arise. It means हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हम ये देख सकते हैं कि हमें केवल वीट प्रोडक्ट करना है, वीट का प्रोडक्शन करना है, या क्लॉथ का करना है, या वीट और क्लॉथ दोनों के कॉम्बिनेशन का करना है. पीपीसी कर्व हेल्प अस व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी. नाउ हाउ टू प्रोड्यूस. सेकंड प्रॉब्लम, हाउ वी कैन रिजॉल्व थ्रू पीपीसी कर्व. How to produce problem relates to the choice of technique. As I told you earlier, there are 2 types of techniques. One labor intensive and another capital intensive. If you can see figure 8,
The figure shows how an economy choose a technique that's enable optimum use of available factor of production. As it evident, point E is very much inside the possibility curve. It shows the use of inefficient techniques. If efficient technique is used, there will be more production of one commodity without sacrificing the production of other, as shows by point A and C. Or there will be more production of both the commodity as shown by point B in relation to point E. कहने का मतलब इसमें यह है कि हाउ टू प्रोड्यूस में यदि हम ई पॉइंट पे प्रोडक्शन करते हैं यानी पीपीसी कर्व के इनसाइड, इट मींस वी आर नॉट यूजिंग आवर रिसोर्सेज इन फुली मैनर और वी आर यूजिंग द डिफेक्टिव टेक्निक. If we use our latest technique, then we will get the production at A point or C point and subsequently in B point also. Outside the PPC curve, outside the PPC curve, we cannot produce anything because outside the PPC curve हम तभी प्रोडक्शन कर सकते हैं व्हेन वी इंक्रीज आवर रिसोर्सेज. जबकि पीपीसी कर्व की जो अजम्पशन है उसमें ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज. तो वी हैव टू ऑप्शन ओनली. वी कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑन द पीपीसी कर्व और बिलो द पीपीसी कर्व. Now third, for whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. There are two society in the economy, first rich and another poor, as I told you earlier. If you see the figure number 9, अगर हम लोग पुअर के लिए यदि प्रोडक्शन करना चाहेंगे, देन पीपीसी कर्व या ब्लू लाइन, यू कैन सी द पीपीसी कर्व इन ब्लू लाइन एट पॉइंट ए एंड बी. बिकॉज लोअर पोटेंशियल, व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर लो, द प्रोडक्शन विल बी लोअर साइड because the income will be lower of poor people as comparison to rich person. If we produce goods for rich people, then PPC curve will move from A, B point to C and D point, because for rich people we will produce more commodity because they have more income, they have saving, they have the more saving and more investment. So for whom to produce, from PPC curve we can say for poor people we will produce A to B point, and for rich people we can produce C and D point. So these are the, we can solve the problem through PPC curve. If a country focus on growth without carrying equity, it may be succeed in shifting from AB to CD. However, economic divided would rage, which may be lead the social unrest. Next, fourth point, fuller utilization of resources. As you know, at any point of PPC curve from A to D, at any point of PPC curve A to D,
correspondent to fuller as well as efficient utilization of resources. यानी हम A से D पॉइंट पर कहीं भी प्रोडक्शन करते हैं, it shows that we are using our resources fully and efficiently. It shows the potential level of output. Potential level of output refers to the maximum level output which can be produced with the given resources and technology. We can see here point P. Any point inside the production possibility curve, such as point F and G, corresponds to underutilization or inefficient utilization of resources. It shows that actual level of output is less than the potential level of output. यानी अगर हम प्रोडक्शन G पॉइंट पर या F पॉइंट पर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम हमारे रिसोर्सेज जो है प्रोडक्शन के रिसोर्सेज उनको फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 लेबर है और हमने 50,000 की कैपिटल लगाई हुई है। यदि सभी 10 लेबरों को हम यूज करते हैं, 50,000 कैपिटल को यूज करते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन A to D होगा। इस कर्व पीपीसी कर्व के किसी पॉइंट पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन यदि हमने 10 में से कैपिटल तो 50,000 लगा दी, लेकिन यदि 10 में से 8 ही लेबर को यूज किया तो हमारा पीपीसी कर्व होगा G पॉइंट पर। और यदि उससे भी कम हमने 5 ही लेबर लगाए और 50,000 कैपिटल लगाई तो हमारा प्रोडक्शन और कम होगा, वो F पॉइंट पर होगा। Then we can say कि we are not using our resources fully and we are inefficient utilization of our resources. Next, fifth thing is growth of resources. Growth of resources means growth of resources is possible only when the economy generate more resources. यानी पीपीसी कर्व राइटवर्ड कब मूव हो सकता है? पीपीसी कर्व के ऊपर जब भी कर्व नया बनाएंगे वो तभी बन सकता है जब when the economy generate more resources. If more resources are generated, the level of production will be increased in as represent in the figure 11. You can say in the figure 11 there will be rightward shift of the production possibility curve. It shows कि जब भी हम रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे तो हमारा पीपीसी कर्व राइटवर्ड की तरफ होगा। फिगर 11.0 ये लास्ट में मैंने बताया है, प्लीज शो at last page. It shows at last page. Now, next term, the concept of opportunity cost. First question is, what is opportunity cost? It refers to the value of a factor in its next best alternate uses. In other words, we can say next best alternative is called opportunity cost. मान लीजिए हमको 5 ऑप्शन हमारे पास हैं और 5 ऑप्शन को हम देखें कि A में यदि 10,000 का प्रोडक्शन हुआ, B में 8,000 का हुआ, C में 6,000 का हुआ, D में 4,000 का हुआ और E में 2,000 का हुआ। तो शुरू के 2 देखिए आप, पहले में 10,000 और दूसरे में 8,000. So our opportunity cost is next best alternative
तो 10,000 का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा 8। तो वी कैन से दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पॉइंट ए इज 8,000। कहने का मतलब मेरा है कि जो पहले और दूसरे ऑप्शन के बीच का डिफरेंस होता है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। लेट्स अज्यूम दैट ए गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज हैव टू यूजेस, use 1 and use 2. If the output of use 1 is 1000 and value of output of use is 2000, टेक्निक रिमेन कांस्टेंट। ये आपको पहले ही बताया कि पीपीसी कर्व में ये एजम्पशन आपको माननी होगी कि दोनों ही यूजर्स में टेक्निक और प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट रहेगी। कॉमन सेंस शुड बी डिटेक्टेड अस दैट द रिसोर्स विल बी एम्प्लॉयड इन यूज 2, कि हम चूंकि दूसरी टेक यूज में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है तो हम सारे के सारे सोर्सेज को किस में यूज करेंगे, 2 में। गिवन दिस सिचुएशन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बी डिफाइंड एज ए लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 1000 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही हमारे पास अल्टरनेट हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट, तो नेक्स्ट 2000 के बाद नेक्स्ट बेस्ट है हमारा 1000। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 1000. Now we can see this from following illustration. Available resources, यानी हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, 1 hectare of land and a given package of other input, यानी लैंड है और हमारे पास अदर इनपुट। अदर इनपुट का मतलब हमारे पास लेबर भी है परफेक्ट मैनर में, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है। पॉसिबल यूज, हम क्या कर सकते हैं विथ द पैकेज ऑफ अदर इनपुट, हम इस इनपुट से क्या क्या चीज बना सकते हैं। फर्स्ट, हम व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंड, हम व्हीट और राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। थर्ड, हम मेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और फोर्थ, वी कैन प्रोड्यूस शुगर केन। कहने का मतलब मेरा ये है कि गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के बेस पर हमारे पास जो रिसर्च है उससे हम ये 4 चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जब हमने प्रोडक्शन कर लिया तो इनकी मार्केट वैल्यू देख लीजिए। यदि वी प्रोड्यूस wheat, then we will get 10,000. If we produce rice, then we will get 8,000. If we produce maize, then we will get 7,000. And if we produce sugarcane, then we will receive 12,000 rupees. Now, what is the opportunity cost in this condition? Obviously, we will employ our resources in the production of sugar cane because we got maximum amount of production 12,000. What will be the opportunity cost? The opportunity cost will be here 10,000 rupees because अगर हम शुगर केन प्रोडक्शन नहीं कर पाए किसी कारण से तो व्हीट में हमें 10,000 रुपये मिलेंगे। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट जो होता है that is called opportunity cost. ये opportunity cost कहलाती है। You can see this diagram also. Next, marginal opportunity cost. देखिए, both are different, opportunity cost and marginal opportunity cost. Both are different thing. The resources, what is the marginal opportunity cost means total resources remain constant when allocation in use of 2 is increased, there is a loss of output of 1. यानी यदि अगर रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं तो किसी एक यूज को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे यूज
के रिसोर्सेज को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम एक की जगह दो चीज का प्रोडक्शन करना चाहें तो एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये जो लॉस होगा आउट, so we can say that the total resources remain constant when allocation in use 2 is increased. There is a loss of output in use 1 and gain in output use 2. So here we can say loss of output means its sign shows called delta q1, and increase in output is delta q2. So the rate at which output in use 1 is lost for every additional unit of output use 2. Delta q1 upon delta q is the formula to calculate marginal utility of technology. Now we can see how we can calculate the marginal opportunity cost with the following example. Estimating marginal opportunity cost as illustration. We have two goods, one is X and another is Y. अगर हम X का प्रोडक्शन जीरो करते हैं और Y का प्रोडक्शन पूरा जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्निक हैं उसको यूज करते हैं तो हमको मिलता है प्रोडक्शन Y का 10,000। फर्स्ट केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी। यदि हमने X का प्रोडक्शन बढ़ाया तो डेफिनेटली बिकॉज रिसोर्सेज आर फिक्स, तो Y में हमें अपने रिसोर्सेज कुछ न कुछ कम करने पड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में द प्रोडक्शन ऑफ Y डिक्लाइंस फ्रॉम 10,000 to 9,000। तो व्हाट विल बी द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 10,000 minus 9,000 is equal to 1,000 is marginal opportunity cost. सपोज हम तीसरा ऑप्शन ले रहे हैं कि जहां हमने X का प्रोडक्शन एक नहीं दो किया तो डेफिनेटली Y का प्रोडक्शन कुछ और कम होगा, क्योंकि हमने Y के रिसोर्सेज को X में यूज कर दिया। तो वी विल गेट द प्रोडक्शन ऑफ Y गुड्स इक्वल्स टू 7,500। नाउ what will be the marginal opportunity cost? Then we will deduct 9,000 minus 7,500 equals to 1,500. Then again we use the fourth option कि we produce X goods 3। अगर हम 3 यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो Y में और भी रिसोर्सेज कट हो जाएंगे, then we will get only 5,500. To produce still another unit of X, 2,000 unit of Y are to be given up. क्योंकि Y को इन दोनों का डिफरेंस then marginal छोड़ना पड़ेगा, then marginal opportunity cost will be 7,000 minus 5,500 equals to 2. हम marginal opportunity cost को निम्न फॉर्मूले से देख सकते हैं। डेल्टा Y लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा X गेन ऑफ आउटपुट, यानी जितना हमें लॉस हो रहा है उसमें जितना गेन हो रहा है यदि हम उससे डिवाइड कर देंगे देन इट कम्स टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, जैसे सेकंड वाले ऑप्शन में आप देखें लॉस ऑफ Y का लॉस कितना हुआ? 10,000 से 9,000 1,000 अपॉन गेन कितना हुआ? गेन ऑफ आउटपुट 0 से 1 तो 1, तो 1,000 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1,000। दूसरे में यदि हम देखें तो दूसरे में लॉस ऑफ आउटपुट कितना हुआ? 9,000 में से 7,500 गया तो 1,500, और लॉस गेन ऑफ X 2 हमारी यूनिट हो गई, पहले 1 थी तो यहाँ भी लॉस 1 यूनिट का हुआ, तो 1,500 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1,500। और तीसरा ऑप्शन में हमारा लॉस आउटपुट का हुआ 7,500 माइनस 5,500
अपॉन गेन 3 में से 2 गई तो 1 इक्वल्स टू 2000 रुपीज। मार्जिनल कॉस्ट टेंड टू राइज, हमेशा मार्जिनल कॉस्ट पीपीसी कर्व में टेंड टू राइज होगी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज बिकॉज as resources are continuously shifted from opportunity 1 to opportunity 2। जो ही हम अपॉर्चुनिटी 1 से अपॉर्चुनिटी 2 में हमारे रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे, द एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड इज यूज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्बर्स्ड। व्हेन द स्पेशलाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज is increasingly disbursed, the loss of output must also be increased. You can see in figure 13, loss of y from k to k1 point। loss of y यानी यदि हम पहले यूज का प्रोडक्शन k से k1 करेंगे, कम करेंगे, ये लॉस हुआ। पहले प्रोडक्शन था हमारा k से OK to OL, फर्स्ट आवर प्रोडक्शन इज फ्रॉम OK to OL। अगर हमने यूज 1 के प्रोडक्शन को K1 to L1 कर दिया, यानी इसको तो OK से OK1 कर दिया, यानी घटा दिया, तो डेफिनेटली यूज 2 का प्रोडक्शन हमारा OL से बढ़कर OL1 हो जाएगा। तो वी कैन से लॉस ऑफ डेल्टा Y कहलाएगा ये, और ये गेन ऑफ X कहलाएगा। What is the difference between marginal opportunity cost and opportunity cost? Marginal opportunity cost is the ratio between loss of output and gain of output when some resources are shifted from use 1 to use 2। यानी इन दोनों के एक यूज से दूसरे यूज में हम शिफ्ट करेंगे तो उससे जो लॉस होगा वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द रेशियो रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड टू यूज 1 एंड यूज 2। इसमें लॉसेज नहीं, लॉस के बारे में नहीं देखते, हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट को यूज देखते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ output when some resources shift from use 1 to use 2, and opportunity cost indicate the cost of all the unit produced when some resources are shift from use 1 to use 2। Please, now you can more understand to see these two examples. Example number 1, an economy produced 2 goods, wheat and cloth. The following table summarize its production possibilities. Calculate you have to calculate the marginal opportunity cost of producing more cloth in place of wheat at various combinations. What does it indicate? Draw the production possibility curve. What is the shape of PPC curve? यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन हैं और दोनों में पहला वीट, अगर रिसोर्सेज को पूरा यूज किया तो वीट 100 किलो होगा, क्लोथ 0 मीटर होगा। अगर हम वीट का प्रोडक्शन थोड़ा डाउन करेंगे 90 तो क्लोथ होगा 25। फिर वीट को और घटाया तो 90, क्लोथ को बढ़ाया तो 25 से 50, क्लोथ को और 50 से बढ़ा के 75 किया तो वीट को हमें घटा के 70 से 40 करना पड़ेगा। अगेन क्लोथ को बढ़ाकर 75 से 85 किया हमने तो क्लोथ को हमें घटाकर वीट को हमें घटाकर 42-10 करना पड़ेगा। और मान लीजिए लास्ट है 6th ऑप्शन कि हमें वीट प्रोडक्शन 0 करना है तो हमारा क्लोथ का प्रोडक्शन 87 होगा। नाउ व्हाट विल बी द सॉल्यूशन एंड व्हाट विल बी द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Now look the solution. The formula of opportunity cost, delta V theory means loss of output upon delta cloth, gain of output। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में 100 और 0 है, यहाँ कोई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी। सेकेंड कॉस्ट में लॉस ऑफ आउटपुट वीट का 100 से 90 हुआ यानी 10, और क्लोथ का हुआ 0 से 25, तो 10 डिवाइड बाई 25
equals to 0.4. अगेन लॉस ऑफ आउटपुट वीट 90 to 70, तो ये 20 हो गया, और इधर प्रोडक्शन बढ़ा 25 to 50, तो 25 प्रोडक्शन, तो 0.8. इसी तरह सो ऑन करें तो यू कैन सी दैन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज. फर्स्ट में 0.4, सेकंड में 0.8, थर्ड में 1.2, फोर्थ में 3 एंड फिफ्थ में 5. And you can show this marginal opportunity cost diagram from this A, B, C, D, E, F. Here अगर हम इसमें आप देखें A to B का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा फार्मूला होगा AR to RB. 100 माइनस 90, 25 माइनस 0, 10.25, 0.48. इस तरह से भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से. एंड लास्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 2, यू प्लीज कैलकुलेट योर सेल्फ. Solution is also given, but please calculate yourself. Thank you very much and have a nice day.